بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج جو ویڈیو ہے وہ 11 ذی القعدہ کے حوالے سے ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آج کے دن کا انتظار تھا کہ 19 مئی کو کون سی ایسی گھڑی ہے جو شیخ الوظائف صاحب نے بتائی ہے، کون سی ایسی گھڑی ہے جس میں خوشبختی اور خوشحالی کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ تو آج کا دن آ گیا ہے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گی، ویڈیو تھوڑی لمبی بھی ہے، تو اس وجہ سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ویڈیو کو لازمی مکمل دیکھیں تاکہ آپ تمام عمل جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں اور برکتیں اور خوشحالی آپ پا سکیں۔ ہے وہ اس کو اپنے سامنے، ٹھیک ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر میں عمل شروع کرتا ہوں توجہ سے۔ اور جن کے پاس کوزہ ہے وہ کوزے کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ جن کے پاس بابرکت مٹی کا برتن ہے وہ اس کو اپنے سامنے رکھ لیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ سخت تصور میں سامنے رکھیں، سخت تصور میں سامنے رکھیں، سخت تصور میں سامنے رکھیں، اور پڑھیں میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن وجد اور وجدان سے پڑھیں۔ اب انشاءاللہ وہ گھڑی اور لمحہ اور ساتھ شروع ہو چکی ہے جس میں بخت برکت کے، خوشحالی اور تونگری کے دروازے کھلنے والے ہیں، اور انشاءاللہ کھل چکے ہیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈوب کے پڑھیں، کیفیت سے پڑھیں، سر جھکا کے اندر ڈوب کے پڑھیں۔ اگر آنسو نکل جائیں تو سعادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن۔ آمین۔ اب جن کے پاس کوزہ ہے وہ دعائیہ ہاتھ، جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس میں کوزہ رکھ لیں، اور جن کے پاس کوزہ نہیں ہے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ دعا جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے دعا کو ہاتھ اٹھائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ جب سانس ٹوٹے اس کوزے میں پھونک ماریں، اور جن کے پاس نہیں ہے تصور میں پھونک ماریں۔ پڑھیں سانس روک کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن۔ اب انگلی سے اس مٹی کے برتن پہ یا غنی لکھیں، انگلی سے لکھیں۔ جن کے پاس ہے وہ انگلی سے لکھیں۔ اچھا، جو نہیں لکھ سکتے وہ یا غنی پڑھیں، یا غنی۔ اور جن کے پاس مٹی کا برتن ہے وہ انگلی سے لکھیں، اس برتن پہ یا غنی ہو، یا غنی لکھیں۔ یا غنی ہو۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھیں، یا غنی ہو، یا غنی ہو۔ جن کے پاس ہے وہ اسی مٹی کے برتن پہ لکھیں۔ آمین۔ اب اس کا دوسرا عمل شروع ہوگا اسی کا۔ آپ نے سانس روک کے پڑھنا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ،
तवज्जो से पढ़ना है। जब सांस टूटे इस पे फूंक मारे। पढ़ें बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। पूजे को हाथ में लेंगे, जिनके पास नहीं है वो तसव्वुर करेंगे। आमीन। अब इस मिट्टी के बर्तन पे सिर्फ 11 बार लिखें कि या गनी हो। जिनके पास नहीं है वो दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें या गनी हो, और जो नहीं लिख सकते वो सिर्फ पढ़ें या गनी हो। आमीन। अब इसका तीसरा अमल है, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सांस रोक कर पढ़ेंगे तवज्जो ध्यान से। ये असल में कायनात के राजों में से राज, और बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के राज आप अपने और अपनी नस्लों के रिस्क, बरकत और तवंगरी में शामिल कर रहे हैं। तो पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सांस रोककर। जब सांस टूटे इसी मिट्टी के बर्तन पे दम करें। इस पे लिखें उंगली से या गनी हो, ए गनी करने वाले, ए किसी का मोहताज ना करने वाले, ए नस्लों के लिए बख्त, तवंगरी, खुशहाली के दरवाजे, दौलत के, इज्जत के खोलने वाले। लिखें या गनी हो। आमीन। अब फिर आप सांस रोक के पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। तवज्जो से सांस रोक के पढ़ेंगे, अल्लाह की तरफ ध्यान करके पढ़ेंगे, डूब के पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। अल्लाह वो बिस्मिल्लाह अता फरमा जिसकी बरकतें, जिसकी खैरें, जिसकी तवंगरियां मुझे नहीं मेरी नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल चले हैं। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अब इस बाबरकत मिट्टी के बर्तन पे उंगली से या गनियो लिखे। जो नहीं लिख सकते वो सिर्फ पढ़े, जिनके पास नहीं वो अपने दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे इस मिट्टी के बर्तन का तस्वर करते हुए लिखें या गनियो।
आखिरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल कर रहे हैं, आखिरी अमल कर रहे हैं, उसको गौर से समझेंगे। हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम। क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम। इसके पहले तवज्जो से सुन लें, फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से, मैंने अर्ज किया कि 40 मील ऊपर नीचे दाएं बाएं बख्त, मुकद्दर, नसीब और उसकी नूर। जब वो करीम पढ़ते हैं ना, या करीम, तो अल्लाह जल्ला शानहू कहता है मेरे बंदा तो इस काबिल नहीं था, ना तुझे रोटी मिले, ना रोजी मिले, ना सेहत मिले, ना औलाद मिले, ना इज्जत मिले, ना वकार मिले। क्यों? तूने सारी उम्र मुझे नाराज किया है। जब तू मेरा नाम करीम कहता है ना, तो मेरी इज्जत और मेरी करीमी, मेरा करम और मेरा फजल, मेरी अता फिर बारिश हो जाती है। क्यों? दुनियादार को भी अगर कहा जाए कि आप बहुत सखी हैं, तो उसकी गैरत जोश में आती है। जब अल्लाह को कहा जाए या करीम, तो अल्लाह की रहमत और गैरत भी जोश में आती है। तो आए डूब के पढ़ते हैं आखिरी पूरी तवज्जो से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम पढ़ें। इस मिट्टी के बाबरकत बर्तन पे आखिरी लिखें या गनी हो, या गनी, या गनी। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। अब हमारा दूसरा अमल है और बहुत बाबरकत अमल है, बहुत मुबारक अमल है। इस दूसरे अमल में जिनके पास ये मिट्टी का बाबरकत बर्तन है, इसमें एक अजवा खजूर मुंह में डाल लें, और जिनके पास नहीं है वो तसव्वुर ही कर लें। याद रखिएगा, इश्क तसव्वुर का नाम है, मोहब्बत तसव्वुर का नाम है, अल्लाह का दीदार तसव्वुर का नाम है, और जन्नत में जाने का तसव्वुर हर वक्त हमारे सामने है। हम तुम रूह की दुनिया के तसव्वुरात में जीते हैं और रूह की दुनिया के तसव्वुरात में अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। और इंशाअल्लाह आप कामयाब हैं और जाते हुए ये तोहफा आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। आप तसव्वुर ही में एक खजूर अपने मुंह में डाल लें, तसव्वुर ही में। अब चूंकि आपने नहीं डाली तो मैं भी नहीं डालूंगा। अच्छा, मैं डाल लूं? चलो मैं डाल देता हूँ, आपका हुक्म है। एक अजवा मुंह में डालता हूँ, क्योंकि कुछ अमल ऐसे होते हैं जो मुंह मीठा करके किए जाते हैं। उसके लिए हमारी किताबों में आता है गुड़ रखें, मिश्री रखें, कुछ अमल ऐसे होते हैं। अच्छा, अब इस अमल के लिए एक अमल है और बहुत ताकतवर अमल है, बहुत जबरदस्त अमल है। अब सारे के सारे किबला रुख बैठे हैं, किबला रुख बैठे हैं, और किसी का रुख अगर किबला नहीं है तो तसव्वुर कर ले, क्योंकि मैं किबला रुख नहीं हूं। मैं अब तसव्वुर में जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं किबला रुख होता हूं तो आपको अमल नहीं करवा सकता। तसव्वुर में जाऊंगा।
اب قبلہ رخ ہو کے جو نہیں ہو سکتے، کوئی اس مجبوری میں اس تصور میں جائیں گے اور قبلہ رخ ہو کے پڑھیں گے قل هو اللہ احد، پڑھیں، پڑھ لیا، اب اللہ صمد کا تکرار کریں اور بہت دل کی کیفیتوں سے، دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، آمین، پھونک مار دیں۔ اب پھر ایک دفعہ ہم پڑھیں گے قل هو اللہ احد، لیکن اب جو اللہ الصمد کا تکرار کرنا ہے، پہلے اس کا تصور سن لیں، پہلے اس کی کیفیت سن لیں، پہلے اس کا درد سن لیں، پہلے اس کا انداز سن لیں۔ جب ہم پڑھیں گے نا قل هو اللہ احد، اس میں ہے اصل میں اللہ کی تعریف کہ اللہ تو ایک ہے، تیری ہی شان ہے، تیری ہی عظمت ہے۔ تو اللہ پاک کا جب تعریف کر کے پڑھیں گے نا اللہ الصمد، کیا پڑھیں گے؟ اے اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ روٹی کی، نہ روزی کی، نہ رزق کی، نہ اولاد کی، نہ صحت کی۔ اے اللہ تجھے زوال نہیں، مجھے زوال کا خطرہ ہے، مجھے اولاد کی ضرورت ہے، اولاد ہے تو صحت مند اولاد، بخت مقدر والی۔ اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جب کوئی مجمع، اب غور سے سنیے گا، خوشخبری دے رہا ہوں، جب کوئی مجمع جمع ہو کے ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کے اللہ الصمد کا تکرار کرتا ہے، اللہ اس کی پیشانی پہ اگر لعنت لکھی ہے رحمت لکھ دیتے ہیں، شقاوت لکھتی ہے سعادت لکھ دیتے ہیں، اور اگر اس کے لیے اور اس کی نسلوں کے لیے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے بخت، نصیب، رزق، دولت، عزت کے دروازے بند ہیں، اللہ کھول دیتے ہیں، اور اس کے لیے فقیری کی بجائے امیری لکھ دیتے ہیں، مفلسی کی بجائے اللہ تونگری لکھ دیتے ہیں، اور اگر اس کے ہاں اس کی نصیبوں میں مقدر میں یا گناہوں کی وجہ سے در در کے دھکے ہیں، جب تکرار سے اللہ الصمد پڑھیں گے اور دل کی گہرائیوں سے ڈوب کے پڑھیں گے، یہ اللہ الصمد دولت کے برکت کے دروازے کھلوائے گا۔ صمد 3 دروازے کھلواتا ہے بخت کے خزانوں کے، کون کون سے؟ سواد میں سمندر کے خزانے ہیں، اور میم میں زمین کے خزانے ہیں، اور دال میں پہاڑوں کے خزانے ہیں۔ اللہ پھر اس کی اور اس کی نسلوں کے لیے خزانے کھول دیتا ہے۔ آئیں اس کوزے کو سامنے رکھتے ہیں، اور سامنے رکھ کے جن کے پاس نہیں وہ تصور کرتے ہیں، اور تصور کر کے ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ کے خزانوں کو لینے، بخت کو لینے، مقدر کو لینے کے لیے ڈوب کے سارے پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ جذبے سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں۔ قبولیت کی گھڑی ہے، بابرکت گھڑی ہے، خوشحالی کے دروازے کھلنے کا وقت ہے، برکت کے دروازے کھلنے کا وقت ہے۔ اللہ الصمد اللہ اللہ الصمد 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 اللہ الصمد۔ اب اس پہ پھونک مار دیں۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ چاروں سمتوں سے ہمارے لیے صمد کے دروازے کھول دے، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ ہم نے قبلہ کی طرف کر لیا، اب دائیں طرف اپنا رخ یا صرف چہرہ پھیر کے دل کی کیفیتوں سے کہ یا اللہ ساری سمتیں قیامت تک میرے لیے بند نہ ہوں،
जिस सिमत में जाऊं बख्त हो, जिस सिमत में जाऊं नसीब हो, जिस सिमत में जाऊं इज्जत हो, जिस सिमत में जाऊं दौलत हो, जिस सिमत में जाऊं तवंगरी हो, जिस सिमत में जाऊं इस्तकबाल हो, जिस सिमत में जाऊं रहमत रूहानियत हो, तेरे और तेरे हबीब का फैज हो, हर सिमत में। तो आप दाएं तरफ सिर्फ मुंह करके दाएं तरफ, जैसे आप बैठे हैं, आपका जो दायां बनता है, आपका जो दायां बनता है, उस दाएं तरफ सिर्फ चेहरा फेर के, जैसे नमाज में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, चेहरा फेर के पढ़ेंगे अल्लाह समद की ज़रबे लगाएंगे। पढ़ें अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद। तरफ सिमत करके कि या अल्लाह तेरी रहमत की सारी सिमतें, चारों तरफ से हमारे लिए इज्जत, बख्त, बरकत, तवंगरी के दरवाजे। और मौला ये मिट्टी का जो कूजा है ना, असल में ये बख्त का, रिस्क का कशकोल है। अल्लाह कभी खाली ना रहे, हाँ कभी खाली ना रहे। ये कशकोल तेरे दर का मोहताज रहे, कभी दर दर का भिखारी और मोहताज न रहे। तो इस कशकोल को, मिट्टी के बाबरकत को सामने रख के, और आप तस्वर में सामने रख के, अब बाएं तरफ तवज्जो करके, बाएं तरफ चेहरा फेर के, और पूरी कैफियतों के साथ, अगर अब के पढ़ने में कोई कैफियत में कमी आई है तो अब वो कमी पूरी करेंगे, और पूरे दर्द और पूरे जलाल और पूरी वजाहत और पूरे इज्जत और पूरे इकराम और पूरे निजाम के साथ पढ़ेंगे। क्या? अल्लाह समद, अल्लाह अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह कोई ऐसा नुकसान, कोई ऐसी बला दाएं तरफ से आए तो अल्लाह समद उसको रोक ले, और मेरे बख्त और तवंगरी के खुले दरवाजे बंद ना करे। और अगर बाएं तरफ से आए तो या अल्लाह समद की ताकत उसको रोक ले, अगर सामने से आए तो उसको रोक ले। अब पीछे सिर्फ तसव्वुर करके हल्की सी गर्दन मोड़ के कि या अल्लाह पीछे की तरफ से अगर कोई ऐसी मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दुख आए तो अल्लाह समद की ताकत उसको रोक ले। सुने जरा पहले एक बात, मेरे पास एक साहब आए, उससे कहने लगे मुझे किसी ने बताया, एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़, किसी दुर्वेश ने बताया, फौत हो गए। कहा कि चारों सिमत और ऊपर नीचे का तस्वर करके अल्लाह समद विजदान से पढ़, कैफियत से पढ़, दर से पढ़, तेरा जादू टूटेगा, तेरी बंदिशें टूटेंगी और तेरे लिए खुशहाली और बख्त के दरवाजे खोलेंगे। बहुत पुरानी बात है। कहा कि मैंने जिंदगी में ये एक दफा अमल किया था और आज आलम यह है कि अल्लाह ने सबसे ज्यादा खुशहाल मुझे कर दिया है। आए फिर हम पीछे की तरफ तस्वर करके
कि अल्लाह कोई दुश्मन पीछे से वार ना करे, कोई दाएं से वार ना करे, कोई बाएं से वार ना करे, कोई दुश्मन का वार जिन का है, जादू का है, दुश्मन का है, जिन्नात का है, इंसान का है, वार ना करे। और अल्लाह मैं अल्लाह समद के कड़े में अपने आप को दे रहा हूँ, अल्लाह समद के हिसार में दे रहा हूँ, अल्लाह समद की हिफाजत में दे रहा हूँ और अल्लाह समद की बरकत में दे रहा हूँ। तो पीछे का तसव्वुर करके विजदान से पढ़े। अगर अब भी कोई पढ़ने में कमी रह गई है उस कमी को पूरा करें। अल्लाह समद, अल्लाह समद, कहते हैं दुआएं ताक़ुब करती हैं, दुआएं पीछा करती हैं। कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा नुकसान, कोई ऐसी मुसीबत, कोई ऐसी परेशानी, दुआ सामने आ जाती है। कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी नीचे से, कभी ऊपर से, नीचे से। कोई आफत, कोई बला, कोई मुसीबत, कोई दुश्मन का वार आएगा। अल्लाह के फजल से मैं अल्लाह समद की ताकत के साथ महफूज रहूंगा इंशाअल्लाह। अब हमारी दो सिमतें बाकी रह गई हैं, एक ऊपर की और एक नीचे की। ऊपर से कोई बलाएं, फरमाए हदीस में आता है 70,000 बलाएं ऊपर से आती हैं और जिनके लिए टल जाती हैं, वरना बलाओं में, मुसीबतों में, तकलीफ में बंदा मुब्तला हो जाता है। फिर एक से निकलता है तो दूसरी, दूसरी से निकलता है तो तीसरी। आए आसमान वाले को अपना दर्द सुनाए और आसमान वाले को उसका नाम सुनाए और अपने दर्द की कैफियत वालों से, दर्द की कैफियत के साथ उस अर्शी करीम से कहें क्या? अल्लाह समद, 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 आमीन, 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 आमीन। कोज़े पे फूंक मार दें, अपने हथेली पे, हाथ पे फूंक मार दें। अब आखिरी सिमत है नीचे। नीचे जमीन में कितनी बलाएं, मुसीबतें। और एक मुसीबत पता है जमीन में कौन सी है? कि अल्लाह मेरे चलते कदम चलते रहें, ये खैर की तरफ उठते रहें, ये बख्त की तरफ उठते रहें, कामयाबियों की तरफ उठते रहें, तवंगियों की तरफ उठते रहें, खुशहालियों की तरफ उठते रहें, तेरे नाम की तरफ उठते रहें, बरकत की तरफ उठते रहें। आए हम तसव्वुर नीचे करके, जमीन की तरफ तसव्वुर करके और पूरे विजदान की कैफियत के साथ और पूरे दर्द की कैफियत के साथ और पूरे गम की कैफियत के साथ। आखिरी अमल है, इसमें कोई कमी न रहे, इसमें उसका नाम भी हो, उसका ध्यान भी हो, उस करीम का नाम भी हो, उस करीम का ध्यान भी हो और पूरे विजदान से पढ़ेंगे और फिर इस बर्तन, वक्त वाले बर्तन पे फूंक मारेंगे और पढ़ेंगे कैफियतों के साथ। अल्लाह अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह
समद। फूंक मारो। अब हम आखिरी अमल कर रहे हैं, बहुत ही आखिरी अमल है और बहुत ही तवज्जो से। वो अमल है या बदीअल अजाइब बिल खैर या बदी। पहले इसके बारे में गौर से सुने। अब इस अमल के लिए जो कौड़ी है वो हाथ में ले लें। जिनके नहीं है वो तसव्वुर में कर लें। जो कौड़ी है इसके अंदर है कौड़ी, वो हाथ में ले लें। इस कूजे के अंदर खजूरें भी हैं और कौड़ी भी है, वो हाथ में ले लें। और नहीं इनके पास नहीं है, इंशाल्लाह मिल जाएगी, तसव्वुर कर लें, वो इंशाल्लाह हमेशा अमल में रहेगी और आपके पास रहेगी। तो इस कौड़ी को हाथ में रखेंगे, पूरी तवज्जो से पहले गौर से सुनेंगे। मैं कि जो बंदा समंदर के पेट में हो या मछली के पेट में, मगरमच्छ के पेट में हो या पहाड़ के पेट में, किसी भी मुश्किल में हो और मुश्किलें उसको ऐसे हो जैसे पेट है और पेट में अंधेरा होता है, फरमाया बदी, अल्लाह का नाम है या बदी हो। क्या नाम है? और मैं जब अल्लाह का नाम या बदीओ पढ़ता है तो अल्लाह के अर्श के आधे दरवाजे खुल जाते हैं। और जब पढ़ता है या बदीअल खैर या बदीओ, फिर अल्लाह के पूरे अर्श के दरवाजे खुल जाते हैं। और खुलने के बाद अल्लाह से कहते हैं कि या अल्लाह, किसी बंदे ने तेरा नाम लिया है और बड़ी अजमत से लिया है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं अब खुल गए हैं दरवाजे, अब उसकी जितनी हाजतें, जितनी जरूरतें, जितनी चाहतें, जितनी मुश्किलें और जितनी परेशानियां हैं, इस दरवाजे के अंदर दाखिल करो। परेशानियों को छांट दो, खैरों को एक तरफ कर दो, परेशानियां हटा दो और रहमतें इसके गले में हार की तरह डाल दो। और खुशहालियां और कामयाबियां और बरकतें और रहमतें और इज्जतें इस कौड़ी को हाथ में रखेंगे और ये कौड़ी सारी उम्र आपको काम आएगी। कहीं कोई दर्द हो, कहीं कोई गम हो, कहीं कोई परेशानी हो, इस दर्द हो, इस कौड़ी को फेरते हुए सांस रोक के अल्लाह समद पढ़ते जाएंगे। क्या पढ़ते जाएंगे? इस कौड़ी को सांस रोक के फेरते हुए अल्लाह समद पढ़ते जाएंगे। थोड़ी देर में बगैर तादाद के, कितनी तादाद है, वहां दर्द खत्म, वहां सोजन खत्म, वहां तकलीफ खत्म। ये आपके पास सारी जिंदगी का तोहफा रहेगा। और अगर ये कूजा टूट जाए किसी वजह से, इसे बर्तन में रखें, टूटे हुए टुकड़े को भी महफूज रखें। टूट जाए अगर, तो उसे किसी बर्तन में रखें और इसकी गुठलियां भी बर्तन में रखें। मैं इसका अमल बताता हूं कि घर जाके क्या करना है। इसका अमल बताता हूं। अब हमने आखिरी अमल करना है। इस कौड़ी को हाथ में रखेंगे और इस कौड़ी को हाथ में रख के हमने कैफियतों के साथ 12 तस्बीहां पढ़ने से मसले हल होते हैं। तो बोलो इस वक्त कितने बंदे हैं, कितनी दुनिया है और कितनी 12 पढ़ी जाएंगी? बोले, सोचें, ख्याल करें, गुमान करें। 12 तस्बीहां पढ़ने से
12 तस्बीहां पढ़ने से अल्लाह की रहमत से मसाइल हल मुश्किलें दूर हो जाती हैं। तो इस वक्त आप अगर विजदान दर्द की कैफियतों से ये तस्बीहां पढ़ेंगे तो बोलें कितनी 12 हो जाएंगी। लेकिन एक चीज है, अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों का पहले तसव्वुर कर लें और ये तसव्वुर कर लें कि आपके लिए बख्त, इज्जत, दौलत, रहमत, खुशियां, खुशहालियों का दरवाजा खुल गया इंशाअल्लाह। पहले ये तसव्वुर कर लें, पहले ये तसव्वुर कर लें कि आपके दिल की जो मुराद है उसका तसव्वुर करें, जो हाजत है उसका तसव्वुर करें और तसव्वुर वो करें जो नामुमकिन हो। क्यों 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 नामुमकिन मेरे आपके लिए, अल्लाह के लिए तो नहीं है। बोले बताएं, नामुमकिन मेरे लिए है, आपके लिए है, क्या अल्लाह के लिए नामुमकिन है? तो अपनी सारी मुसीबतें, सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां, सारी नाकामियां और सारी उलझनों का सफ तसव्वुर करके और मेरे साथ पहले दरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। अब दरूद पाक अव्वल आखिर की नियत करके पढ़ के अब हम इस कौड़ी को हाथ में, दाएं हाथ में रखेंगे, कूजे को सामने रखेंगे, बाबरकत बर्तन को मिट्टी के, और हम कैफियतों के साथ, अपनी दिल की गहराइयों के साथ और बख्त, कुशादगी और खुशहाली के दरवाजे खुल चुके हैं और वो मेरे लिए भी खुल जाएं, इस कैफियत के साथ पढ़ेंगे मेरे साथ। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदीयो, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदीयो, अल अजाइब बिल खैर या बदीयो, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदीयो, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदीयो। डूब के पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, अंदर के सच्चे दर्द से पढ़ें। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदीयो, 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 बदी अल अजाइब बिल खैर या बदीयो, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदीयो, या बदी, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदीयो, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदीयो, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदीयो, 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 बदी अल अजाइब बिल खैर या बदीयो, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदीयो, या बदी अल अजाइब बिल खैर। अब इस वजीफे का आखिरी लम्हा है और डूब के, टूट के उसके नाम से गिड़गिड़ा के पढ़ें। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी, 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 या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी।
खैर या बदी। इसको ज़ेबे फूंक मार दें, आमीन। अब हमने सबसे पहले फूंक आसमान की तरफ मारनी है इस नीयत से या अल्लाह अर्श का दरवाज़ा खुला है, सदा खुला रहे। बरकत का, खुशहाली का, तवंगरी का दरवाज़ा खुला है, सदा खुला रहे। आसमान की तरफ फूंक मारे। आप अपने दाएं तरफ फूंक मारें, या अल्लाह जो दाएं तरफ वक्त और बरकत के दरवाजे खुले हैं सदा खुले रहे। आप बाएं तरफ फूंक मारे, या अल्लाह यहाँ से जो वक्त बरकत के खुशहाली के दरवाजे खुले हैं कभी बंद ना हो। अब अपने पीछे फूंक मारे, या अल्लाह पीछे से जो बरकत और रहमत आई है, अल्लाह उस समद की हिफाजत आई है और बरकत के दरवाजे खुले और मुसीबतों के दरवाजे बंद हुए। बस तेरी रहमत से दरवाजे खुले रहे और मुसीबत दरवाजे बंद रहे। फूंक मारे। अब अपने आगे, या अल्लाह हमारे आगे हमेशा खुशियां, खुशहालियां, इज्जतें रहे, रहमतें रहे और हमारे चेहरे को जो देखे सदा इज्जत करे और हमें भी हमेशा खैर देखने को, रहमत देखने को मिले और रूहानियत और बरकत देखने को मिले। और ये मेरी आंखें हमेशा काबा, मदीना, मक्का देखें और हमेशा औलाद की खुशियां और बख्त देखें और औलाद के नसीब मुकद्दर देखें और हमेशा रहमत मारेंगे। अल्लाह नीचे की कोई बलाएं, वबाएं, मुसीबतें हमेशा न रहे और मेरे कदम उठें तो हमेशा खैर की तरफ, बरकत की तरफ, खुशहालियों की तरफ और रहमत की तरफ और कामयाबियों की तरफ फूंक मारें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, या रब्ब लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजहिका व अजीम सुल्तानिक। ये आपने बहुत जबरदस्त अमल किया है। अब घर जाके क्या करना है, थोड़ा सा मुझसे हिदायत ले ले, फिर इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं। घर जाके क्या करना है, ऐसा है इस कुजे पे खजूरियां आप खा लेंगे, उसकी गुठलियां धो के इसमें रख देंगे, वो हमेशा इसी में रहेंगे और कौड़ी भी इसी में रहेगी। उन गुठलियों को चाहें तो जैतून का तेल खुशबूदार लगा ले, बरकत वाला लगा ले, कोई खुशबूदार तेल कोई भी लगा दें उन गुठलियों पे और कौड़ी भी यहाँ रहेगी। जब भी कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, कोई मसला हो,
अब जरा इस कूजे को समझें और गौर से समझें और तवज्जो से समझें। ये कूजा आपके पास है और टूट भी जाए तो किसी बर्तन में रखेंगे, हमेशा इसकी बरकत रहेगी। और जिन्हें नहीं मिला, कौड़ी है, वो किसी बर्तन में डाल देंगे, किसी कटोरी में डाल देंगे, कूजे की नियत कर लेंगे। ठीक है, कूजे की नियत कर लेंगे। अब इस कूजे के कुछ अमल मैं आपको बताने लगा हूं, गौर से समझे। सबसे पहले कौड़ी का अमल है, जहां भी दर्द तकलीफ हो वहां मलें और क्या पढ़ेंगे? अल्लाहु समद। और ये हर हालत में पढ़ सकते हैं और बिला तादाद पढ़ते जाएं, मलते जाएं, पढ़ते जाएं, मलते जाएं। ये कौड़ी ऐसी जबरदस्त है, आप नहीं सोच सकते। ये हमेशा आपके पास रहेगी। इसमें गुठलियां होंगी, इसमें गुठलियां होंगी। जब भी कोई मुसीबत और तकलीफ हो, कोई मुश्किल हो, इन गुठलियों के ऊपर अल्लाहु समद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गोलियां बनाएं, आटे की गोलियां, और हर गोली पे या गनी पढ़ना है। 11 आटे की गोलियां बनाएंगे और हर गोली पे बनाते हुए क्या पढ़ेंगे? या गनी 11 बार। कितनी बार? हर गोली पे। और गोलियां कितनी? इस कूजे में डाल के फिर निकाल के किसी परिंदों को समंदर में, दरिया में, नहर में, झील में, कहीं ऐसी जगह जहां अल्लाह की बेज़बान मखलूक खा जाए, ये अमल इसका करना है। आखिरी इसका हदिया है। हदिया बहुत जरूरी है। हदिया हमेशा पीर लेता है। हदिया हमेशा पीर लेता है, हमेशा। मैं एक पीर साहब के पास बैठा था, उससे कहने लगे, वो हया ना आया, तो पीर के पास खाली आया है तो ठीक है, पर तो खाली ही जाएगा। मैं कहा, पीर साहब ये भरा जाएगा। कहने लगा, बस कर, तेरे तस्बीह खाने में बड़े बंदे आते, मेरे 4 आते, यही बंद ना कर। मैं कहा, पीर साहब ये भरा जाएगा, आप इसे अल्लाह का नाम देंगे। अब मैं कूजे के अमल फिर दोहरा रहा हूं, आखिरी दफा। जो कौड़ी होगी ना, जहां दर्द तकलीफ हो वहां उसको फेरते हुए अल्लाहु समद बिला तादाद पढ़ना है। थोड़ी देर फेरना है, चाहे दिन में जितनी दफा कर लें, हर हाल में कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसमें जो गुठलियां हैं, उन गुठलियों पे जब भी कोई तकलीफ, मुश्किल, परेशानी हो तो उन पे अल्लाहु समद पढ़ें और बिला तादाद पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, यकीन से पढ़ें। दिन में जितनी दफा पढ़ें, जिस हालत में पढ़ सकते हैं, घर के जितने अफराद पढ़ें। इन गुठलियों पे क्या पढ़ना है जब भी कोई मुसीबत परेशानी हो? और एक चीज ज़हन नशीन रखिएगा, अजवा खजूर के अंदर वो का ताकत और कुव्वत है, ये खुद जादू का तोड़ है। अजवा खजूर खुद जादू का क्या है? तोड़ है। और ये खजूर थोड़ा थोड़ा करके सारा घर खा लेगा। इन गुठलियों पे क्या पढ़ना है? इसमें आता है अजवा खजूर जादू का तोड़ है, तो ये बीमारियों का इलाज है। तो इन गुठलियों पे अल्लाह समद पढ़ेंगे, अपने मसाइल का हल, मुश्किल। और आखिरी चीज इसकी खिदमत में अर्ज करूं, जुमे के दिन 11 गोलियां आटे की और हर गोली पे 11 बार या गनी हो। ये जो अमल है ना, ये खुशहाली और बख्त के दरवाजे को हमेशा खुला रखेगा। या गनी हो, इसमें डालेंगे, इसी में, और इसको गुठलियां कौड़ी पहले निकाल के खाली करेंगे, डालेंगे, फिर इसमें से निकाल के परिंदों को, और कहां? झील, नहर, दरिया, समंदर, जहां मछलियां, कीड़े खा लेंगे। आखिरी चीज इसका हदिया है। अब इसका हदिया क्या है? इसका हदिया यह है कि इसको गुठलियां और कौड़ी किसी बर्तन में रख के पैसों से इसको भर लेना है। अच्छा, कोई नहीं भर सकता, 1 पैसा डाल दे, 1 रुपया डाल दे, 10 रुपए डाल दे, जितनी हस्ब तौफीक है, डाल के निकाल के किसी जरूरतमंद को दे दे, ये हदिया हो जाए। ठीक है? इसको पैसों से भरना है, पैसों से भरना। एक साहब थे, उसका नाम ताजा था। एक हिंदू की गाय थी, उसकी गाय थी, गाय को सुइयां मारता था रोज। फिर जो उंगली लगाता था, गाय एकदम ऐसे उठती थी। एक हिंदू को गाय बेची, उसको उंगली लगाई, एकदम उठी। उन्होंने कहा, ये जबरदस्त गाय है, ये रब्बों लदी है, ये ऐसी मिलती नहीं है।
उन्होंने कहा क्या लेगा? उन्होंने कहा मैं मुंह खोलता हूं, रुपए होते थे मेरे मुंह में रखता जा, मेरे मुंह को रुपए से भर दे, गए ले जा। हिंदू बनिया सोचे लगा कि सौदा सस्ता है, इसके मुंह में कितने रुपए आएंगे। ताजे ने किया, उसने रुपया रखता गया, 50 गए, 60 गए, 70 गए, 100 गए ना, तो उसकी हाय निकली। ताजे ने कहा मुंह अभी है बाकी। उसने कहा सौदा नहीं मैं करता। ताजे ने सारे मुंह से पैसे लेके हाथ में रख लिए, पर अब पंचायत हुई, ताजा जीत गया कि इसने तय किया था कि मेरा मुंह भरना है, इस बाबरकत बर्तन को भरना है। आप नहीं भर सकते, हस्बे तौफीक, रुपया 2, 10, 20 इसमें सिक्का डाल के वो किसी जरूरतमंद को दे दे। बात समझ आ गई? क्या ख्याल है? ठीक है, किसी जरूरत। अच्छा, ये जिंदगी में एक दफा करना, ये अमल, अतिये वाला अमल जिंदगी में एक दफा करना है। और जो कौन सा अमल? आटे वाला, वो जुमे के दिन करना है, हर जुमे। और जो कौड़ी वाला है उसकी कोई तादाद नहीं। अल्लाह समद वाला है, उसका कोई उसकी पाबंदी नहीं, पर आटे वाला अमल जुमे के दिन करना है। समझ आ गई? इस ज़िमन में कोई सवाल तो नहीं? समझ कोई? सिक्के रखे, नोट नहीं। अच्छा, अब दुआ होगी, मैं यहां बैठा रहूंगा जब तक आपको ये देंगे नहीं, मैं नहीं उठूंगा, मैं यहीं बैठा हूं। एक दरखास्त है, आप बैठे रहेंगे, मुसाफे के लिए नहीं आएंगे। खुदा ना खास्ता मैं नापसंद नहीं करता। मसले की बात है, अगर मजमा ज्यादा हो तो सिर्फ सलाम करना होता है, सलाम करना एक दरखास्त है। वरना बाज औकात मेरे पर मोहर लगाते हैं कि गरीबों से नहीं मिलता, अमीरों से मिलता है। एतराज बन जाता है, और किसी फकीर के बारे में एतराज किया जाए तो बहुत नुकसान होता है। मैं यहां बैठा हूं, इंशाअल्लाह जब सारी तकसीम हो जाएगी फिर मैं यहां से उठूंगा। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या राहिमल मसाकीन या राहिमल मसाकीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या करमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार व अदखिलल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार या अज़ीज़ या गफ्फार या अज़ीज़ या गफ्फार या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन। ऐ सखिया का, तेरी बंदियां और बंदे दूर परेश हैं, धूप, गर्मी, तपिश। ऐ मेरा अल्लाह, एक इश्क था जो इनको लाया, एक वलवला था, एक मोहब्बत है जो इनको दूर परे से तेरे नाम की बरकत के लिए लाया है। अल्लाह, आए तो मेरे दर पे हैं, पर मेरा दर खाली है। मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं मंगता हूँ, मैं भिखारी हूँ। अल्लाह, तू भूख से पाक, तू प्यास से पाक, तू मंगता भिखारी होने से पाक। ऐ सखिया का, इतना बड़ा सखी और तवंगर हो के इन बंदों की जरूरतें पूरी ना हो, नहीं मौला, तो फिर हमारा ही कसूर होगा, तेरे देने में कमी नहीं होगी। ऐ अल्लाह, इन सब के लिए खुशी और खुशहालियों के दरवाजे खोल दे, खोल दे, खोल दे, बख्त के दरवाजे खोल दे, तवंगरी के दरवाजे खोल दे, अर्शों से खोल दे, अर्शों से खोल दे। ऐसे दरवाजे जो कभी बंद ना हो, ऐसे दरवाजे जो कभी बंद ना हो। हमेशा तेरी रहमत मुतवज्जे हो, हमेशा तेरा करम मुतवज्जे हो, और हमेशा तेरा फजल मुतवज्जे हो। अल्लाह, हमारी सारी जरूरतें गैब से पूरी फरमा, मुश्किलें हल फरमा, नाकामियां दूर फरमा। इन उठे हुए हाथों के कशकोल मौला भर दे। ये हाथ नहीं कशकोल है, अल्लाह भर दे।
या अल्लाह भर दे, इन कशकोल को तवंगरियों से भर दे, बरकतों से भर दे, और रिस्क से भर दे, और सेहत से भर दे, आफियत से भर दे। अल्लाह इस कशकोल में अपनी रहमत मुतवज्जे कर दे, इस कशकोल में अपना फजल मुतवज्जे कर दे। अल्लाह जिसका कशकोल खाली है वो भर दे, बे औलादों को औलाद दे दे, बे घरों को घर दे दे, बे दरों को दर दे दे, और बेसहारों को सहारा दे दे। हमारी मुश्किलें गैब से खत्म कर दे। अल्लाह जो दिल में आसे लेके बैठे हैं पूरी कर दे, उम्मीदें लेके बैठे हैं पूरी कर दे, मुरादें लेके बैठे हैं पूरी कर दे। या अल्लाह हमें ना मुराद ना लौटा, हमें ना मुराद ना लौटा, हमें बा मुराद लौटा। हमारी मुरादें पूरी कर दे, हमारी मुश्किलें हल कर दे, हमारी नाकामियां दूर कर दे। जिल्लत के अगर हमारे लिए फैसले अर्शों से हो चुके हैं उनको इज्जतों में बदल दे, उनको इज्जतों में बदल दे। अगर हमारी पेशानी पे लानत लिखी है, शकावत लिखी है, ऐ मौला, ऐ सखिया का, ऐ लजपाल अल्लाह, अगर हमारी पेशानी पे लानत लिखी है, शकावत लिखी है, बदबख्ती लिखी है कि कब्र में ये खिंजीर बन जाएगा और कब्र में ये कुत्ता बन जाएगा और इसका सर दाएं तरफ से हट के बाएं तरफ हो जाएगा, ए मेरा अल्लाह अगर लिखा है आज के इस साथ में वो मिटा के रहमत लिख दे, इज्जत लिख दे, बरकत लिख दे, रिस्क लिख दे, उन लकीरों में सेहत लिख दे, उन लकीरों में नसीब लिख दे, उन लकीरों में बरकत आफियत लिख दे, उनमें बख्त तवंगरी लिख दे। अल्लाह बा मुराद बना दे, ना मुरादी से बचा दे। अल्लाह कलमा नसीब कर दे, इस कलमा नसीब कर दे, इस चेहरे को स्याही से बचा दे, इन हाथों को मंगता होने से बचा दे, और दर दर का भिखारी और दर दर का मंगता ना बना, अपने दर का भिखारी बना, अपने दर का मंगता बना। और या अल्लाह ये आस करके आए हैं, इस आस और उम्मीद वाले मजमे की आसें लाज रख ले। और पूरी दुनिया में तेरी बंदियां बंदे बैठे आस करके बैठे हैं, अल्लाह किसी को बेआस ना कर, किसी को बेउम्मीद ना कर। अल्लाह सबकी आस उम्मीद को पूरा कर दे, सबकी जरूरतें पूरी कर दे, सबकी मुश्किलें हल कर दे, सबकी नाकामियां दूर कर दे, बादशाहों को फकीर कर दे। ऐ अल्लाह अपनी रहमत से, अपने फजल से हमें गैबी रिज़्क अता फरमा, गैबी इज्जत अता फरमा और गैबी बरकत अता फरमा। ऐ सखिया का इस मजमे में सफेद वालों वाले भी हैं, इस मजमे में तौबा करने वाले जवान भी हैं, इस मजमे में छोटे छोटे बच्चे हैं। वो देखते हैं अम्मा रो रही, अब्बा रो रहा, उनको पता नहीं रोना क्या होता है, पर उनका वजूद रहमत का जरिया, उनका वजूद बरकत का जरिया, उनका वजूद बलाएं टलवाने का जरिया, उनका वजूद आफतों को दूर करने का जरिया। अल्लाह इन वजूदों की बरकत से हमारी दुआएं कबूल कर ले, आफतें खत्म कर दे, बलाएं टाल दे, दर दर का भिखारी होने से बचा, दर दर का मंगता होने से बचा, दर दर का सवाली होने से बचा। अपने दर का मंगता बना, अपने दर का सवाली बना, अपने दर का मोहताज बना, अपने दर का मोहताज बना। या अल्लाह जो हर हफ्ते यहाँ 3 दिन रूहानी चिल्ला होता है, आज उसकी इख्तितामी दुआ है, अल्लाह उनकी हाज़री कबूल फरमा। और जिन्होंने यहाँ इबादत और खिदमत के लिए जिंदगियां वक्फ की हैं, उनकी हाज़री कबूल फरमा, उनकी हाज़री कबूल फरमा, उनकी हाज़री कबूल फरमा, उनकी मुश्किलें हल फरमा और परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह परेशानियों में घिरा मजमा बैठा है, सख्त गर्मी और धूप के अंदर, ये मेरा अल्लाह इस मुशक्कत के बदले इनको जहन्नम की धूप से बचा, आग से बचा, इनको जादू की आग बंदिशों से बचा, इनको जादू की आग बंदिशों से बचा, और इनको कर्जों की आग बंदिशों से बचा, इनको रिश्तों की आग और बंदिशों से बचा। घर आबाद कर दे, जिंदगियां शाद कर दे, आपस में मोहब्बतें निखेर दे और मोहब्बतें बिखेर दे, खुशियां खुशहालियां दे दे, राहतें रहमतें दे दे, इज्जतें वुसअतें दे दे। किसी मंगते
मंगते को खाली ना भेज, किसी मंगते को खाली ना भेज, किसी मंगते को खाली ना भेज, किसी भिखारी को खाली ना भेज। हम सारे मंगते और भिखारी हैं, तेरे दर के भिखारी, तेरे हबीब की चौखट के भिखारी हैं, आले मोहम्मद के दर के भिखारी हैं, असहाबे मोहम्मद के दर के भिखारी हैं, औलिया के दर के भिखारी हैं। अल्लाह उनका फयूज बरकत अता फरमा, उनकी तवज्जुहात अता फरमा और अपनी रहमत को सदा मुतवज्जह फरमा, अपनी रहमत को सदा मुतवज्जह फरमा। बस करम कर दे, बस रहम कर दे, मुश्किलें आसान कर दे, नाकामियां दूर कर दे, दिल की दुनिया शाद कर दे, मन की दुनिया शाद कर दे, जरूरतें गैब से पूरी कर दे और मुश्किलें हल कर दे। आज तूने बख्त और तमंगरी के दरवाजे इंशाअल्लाह खोल दिए हैं, इंशाअल्लाह खोल दिए हैं, इंशाअल्लाह खुशहालियों के दरवाजे खोल दिए हैं। हमारे लिए भी, पूरी उम्मत के लिए भी कभी बंद न करना। हमारे बादशाहों के लिए, हमारे वजीरों के लिए, हमारे मुशीरों, फकीरों, अमीरों के लिए कभी बंद न करना। अल्लाह सब के लिए आसानियां कर दे, सब के लिए आफियत कर दे और सारे मजमे को खैर दे दे। बड़े हौसले वाला मजमा, बड़े सब्र वाला मजमा और बड़ी तलब वाला मजमा और बहुत इश्क वाला मजमा, इनकी हाज़रियां कबूल फरमा, इनकी हाज़रियां कबूल फरमा, इनकी हाज़रियां कबूल फरमा, इनकी हाज़रियां कबूल फरमा और इनके जाने वाले कदम भी कबूल फरमा, इनके आने वाले कदम भी कबूल फरमा। आमीन 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 आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप तशरीफ ले जाएं, फौरन अपने हदाए आपको तोहफे दरवाजे